ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਪ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਪ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਫ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਬਸ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵੈਲ, ਤੇ ਰੋਗ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਰਜਰੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਐਟ ਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਡਾਕਟਰ? ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਮਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸ਼ੇਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਫਿਰ 6 ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, VCDਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ। ਔਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5P ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਇਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਨੀਚੇ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਯੈਸ ਨੋ ਲਿਖੋ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਧੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 100% ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋਏ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, राइट, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ चले गए। हाँ जी, हिंदी में ओके। तो अगर हम वैसे ही चले जाएंगे
तो आप सोचिए कि आपकी सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाएगा। पर अगर आप तैयारी पूरी करके जाएंगे हर चीज के लिए, राइट, मैं आपको बताता हूं कि हर चीज के लिए तैयारी करनी पड़ती है। कैन यू इमेजिन, हमें 20-20 साल हो गए स्टेजों पे बोलते हुए, पर अगर हमने 5 मिनट के लिए भी स्टेज पे जाना होता है, हम पूरी तैयारी करके जाते हैं कि क्या बोलना है। अगर नहीं तैयारी करके जाएंगे तो आप कभी भी इतनी लोगों के सामने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, राइट। सो हर काम में जो बच्चा एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो उसके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं, उसके मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जिसकी तैयारी ही नहीं अच्छी होगी तो वो तो फिर हनुमान चालीसा ही पढ़ता चला जाएगा या भगवान को प्रे करता चला जाएगा, हे भगवान आज बचा लेना, आज नंबर अच्छे दे देना। तो उससे तो होने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भाई, मैंने तेरे को बुद्धि दी, तेरे को सब कुछ दिया, तो तू अच्छी तैयारी करके जा, तू अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, राइट। सो दोस्तों, हमेशा तैयारी करके जाओ, हमेशा हर चीज के लिए आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आगे जितेंद्र जी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ दें, हाँ जी इसमें ठीक है कुछ सर। ज्यादा समझाने वाला नहीं है। अगर स्किप कर जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारों सबने पढ़ लिया होगा, बिल्कुल ठीक है सबने पढ़ लिया होगा, तो हम इस पे टाइम ना वेस्ट करें। सर। एक बस ये पॉइंट मैं एक पहला, पढ़न वाला है। हाँ जी बोलो। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੂ ਲੀਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਫਰਟਸ। हाँ, यस यस यस, ये ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छा पॉइंट जतिंदर जी बहुत अच्छा नोट किया हैगा। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू लीवरेज टाइम एंड एफर्ट्स। अच्छा, व्हाट इज लीवरेज? कोई बंदा दस सकता व्हाट इज लीवरेज? कोई लीवरेज का मतलब दसो। मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ आई विल आस्क क्वेश्चंस आल्सो इन बिटवीन। कोई फिजिक्स ਦਾ स्टूडेंट ही दस सकता ਇਹਨੂੰ अच्छी तरह कि व्हाट इज लीवरेज? एनीबॉडी? ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिंट देता, I have just given you a hint कि only physics students can answer this question. Not even science students can answer this question. Only physics students can answer this question. Yes, Dr. Jyoti is somewhere near, somewhere की काफी ज्यादा near नेगे। So फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ सिद्धांत हैगा लीवर ਦਾ ਹੀ सिद्धांत है, लीवर का, कि उसको फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा 10 किलो उठा सकता है तो ऐसा नहीं है कि 10 बंदे मिल गए तो वो 100 किलो ही उठा सकते हैं। 10 बंदे मिलके 500 किलो उठा लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवरेजिंग। तभी ये बिजनेस इतना महान है, क्योंकि आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हैं। जो भी काम, जो भी बिजनेस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अकेले बंदे कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई नौकरी है, तो अकेले बंदे से वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो कि लीवरेजिंग से। जब हजारों बंदों की एफर्ट्स लगती हैं तो लीवरेजिंग बहुत हो जाती है, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कंपाउंड हो जाते हैं, राइट। सो ये लीवर का सिद्धांत है, ये अपना, हाँ, लेस एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवरेजिंग। सो इसमें इस बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है, न्यू पर्सन्स के लिए जल्दी से पढ़ लें। ओके, डॉक्टर साहब कहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, एक एक जो वर्ड जरूरी है हम उसी पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी न्यू पर्सन के लिए सारा पढ़ दें। जितेंद्र जी आप क्योंकि सारा सर पढ़ दो। न्यू जॉइनिंग्स है ना सर, ਉਹਨਾਂ को एलवाईएफ नहीं हैगी। सर मैं कल पीडीएफ भेजी है, उन्होंने को पीडीएफ खोल के रखन। मैं, हेलो, पीडीएफ मैंने सबको पीडीएफ कल भेज दी है एलवाईएफ की। जिनके पास एलवाईएफ नहीं है प्लीज वो पीडीएफ को कल से खोल के रखें, अभी भी खोल सकते हैं वो अपने मोबाइल पे। कल मैंने भेजी है आपको एलवाईएफ, कंप्लीट एलवाईएफ भेजी है आपके पीडीएफ पे। तो सभी से रिक्वेस्ट है जी, एलवाईएफ साथ रख के अगर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जिनके पास एलवाईएफ खुली नहीं हुई ना, तो उनको उतना मजा नहीं आएगा, तो उनको उतनी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कल पीडीएफ मैंने भेजी है, इसीलिए भेजी है कि सब लोग उसको खोल के रखें। हाँ, इन्होंने बोला हिंदी बुक में
क्या है, कोई बात नहीं, हिंदी पंजाबी आप साथ में बुक रखें, तो आपको हम ज्यादा मुश्किल कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज कर रहे, हिंदी ही बोल रहे हैं। तो जितेंद्र जी इंग्लिश को साथ साथ हम हिंदी हिंदी में ही आपको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिजनेस इज टू लीवरेज, मतलब के कुछ लोगों को आप और मल्टीप्लाई करने से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। यही ऑब्जेक्टिव है इस बिजनेस का, कि लीवरेज टाइम एंड एफर्ट्स। मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे देते हो तो 10 बंदे 2 घंटे देते हैं तो 20 घंटे ही होंगे, तो वो ही आपके सैकड़े घंटे हो जाते हैं। और एफर्ट्स भी कम एफर्ट्स से ज्यादा रिजल्ट मिलता है। इसको बोलते हैं द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू लीवरेज टाइम एंड एफर्ट्स। इस बिजनेस का यही है, नेटवर्किंग का सिद्धांत ही यही है। इसीलिए सोचो, बड़े से बड़े बिजनेस में उतने पैसे नहीं बनते, उतने रिजल्ट नहीं आते जितने के इसमें आ जाते हैं। आप अब मेरी बात समझ गए कि नहीं, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें लीवरेजिंग होती है। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। अभी जितेंद्र जी पढ़ दो एक बार, कह रहे हैं डॉक्टर ज्योति जी, जल्दी से पढ़ दो। The what of network marketing system? The network marketing and distribution system is similar to the direct distribution system. Direct distribution is an alternative method for distributing products to consumer. It differs from the customary distribution process, which uses the middleman such as jobbers, wholesalers, stockists, and retailers. The network marketing and distribution system takes the direct distribution concept further. It uses a network of distributors to get the product to move from the manufacturer to the end consumer directly, eliminating the middleman from the distribution process. It offers a business opportunity to people who want to earn extra income in their spare time by networking with people. The business is open to every person, irrespective of her or his background. In a conventional business, direct selling is involved, wherein each salesperson sells product with an objective of networking, increasing his or her sales volume, and gets credit and incentive for the effort put. Network marketing is an extension of direct sales. Network marketing is all about a large number of people selling consumable products and those products that are most frequent used by the people. The basic objective is to leverage time and effort. This is हाँ, done रुकिए by रुकिए रुकिए जितेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा मैं पॉज करना चाहूंगा आपको। तो ये सारा प्लान की बात है जो आप हमेशा प्लान में समझते हैं। हिंदी बुक का पेज नंबर क्या है? हिंदी ये आसपास ही होगा जी, ये 5 नंबर पेज हम पढ़ रहे हैं, वो 6-7 होगा या 4 होगा, कुछ ऐसा। तरुण थापर जी कहते हैं वो 5 नंबर ही है। तो 5 नंबर है, आपने आप थोड़ा सा ढूंढ लिया करो ताकि हम आगे बढ़ जाएं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, हमारे पास टाइम कम है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको पता ही है कि ये बिजनेस कैसे चलता है, कि फैक्ट्री से सामान बनता है और मिडिल मैन को हटा के वो सीधा जाके हमारे पास पहुंचता है, और जो 70-80% पैसा मिडिल मैन ले जाते थे, अब वही पैसा जो है कंपनी ने हमें देना है, सबको मिला के, राइट? तो वही उसी से ये हमने एलिमिनेट कर दिया मिडिल मैन को, और वही पैसा हम बना सकते हैं। और उन लोगों के ये बिजनेस है जो कि अपने पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, और ऐसी सब्सटैंशियल इनकम बनाना चाहते हैं कि जो के पुश्तों तक उनके पास चलती रहे। तो वो इनकम जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बिजनेस है। और इसमें आप जितनी मेहनत करते चले जाते हो, जितने और लोगों को आप इनमें लोगों को प्लान दिखा दिखा के अपने नेटवर्क में लाते चले जाते हो, उतना ही आप सेल्स वॉल्यूम ज्यादा करते हो, और उतना ही कमीशन आपको इनकम जो है अलग अलग तरह की आपको ज्यादा आती है। और जितने भी रिवार्ड्स हैं वो सारे सेल्स के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपकी सेल्स जो है बढ़ती चली जाती है। और द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू लीवरेज टाइम एंड एफर्ट्स। हाँ जी, आगे चलिए। This is done by continuously increasing the number of people in the group. The logic being that more people means better distribution of efforts and more hour of working summated. In network हाँ marketing, बिल्कुल।
In network marketing, the distributor is referred to as a business person because the person not only gets incentive and credit for the effort he put in, but also get a percentage of the profit on all sale done by the people he sponsored. किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज लिखिए इस पे। आपने ये होमवर्क में किया भी होगा, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो लिखिए नीचे, हम उसका आंसर करेंगे। नहीं तो आप आगे चलिए। हाउ नेटवर्किंग How of network marketing? हाँ, हाउ, अब हाउ सिखा रहे हैं हम, अब हाउ सिखा रहे हैं कि हाउ कैसे हाउ करनी है। हाँ जी। The network marketing company manufacture a line of products while the distributor, being independent, are like partner of the company. They are allowed to build a team of distributors in their downline, forming a network and earning a certain percentage of their combined sales. Hence, the distributors are deemed to have their own marketing business. The company handles all the research, development, manufacturing, procurement, and quality control of the products. It also takes care of the administration, data processing, public relation, and other such areas. The independent distributors take on the responsibility of marketing the products using the company's sales and marketing plan. Each distributor gets involved in customer acquisition, promotion of products, and creation of sales volume through the network of distributors they form. By doing so, they serve their own business as well as that of the company. The company provides the necessary support for marketing the products by making available brochures, flyers, and other training materials at the nominal cost. It may also take up the delivery of products to the distributors and consumers. As the network of independent distributors promotes and markets the products, the companies save on the cost of advertisements and the payment to the series of middlemen. This amount that is saved is used to pay discounts, commission, bonus, and other benefits to the independent distributors in the multi-level network. Network marketing has proved itself as the part of the new economy and a preferred way to do business hence and around the world. हाँ जी। सो जितेंद्र जी ने सारा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पढ़ ਦਿੱਤਾ है, आपके लिए पढ़ दिया है, पर इसमें से डॉक्टर मंजू जी बहुत से शाम को आपसे क्विज क्वेश्चन पूछेंगे इसी से, तो आपने इसको अच्छे से एक बार फिर से अध्ययन कर लेना है। तो ये नथिंग बट प्लान में आप बार बार ये सारी चीजें देखते हैं। इसमें नटशेल क्या है कि जितने भी टेंशन वाले काम है वो सारे ही सारे एमवे कंपनी ने ले लिए, चाहे वो उन्होंने बताया कौन कौन से, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा प्रोसेसिंग, पब्लिक रिलेशन, जितने भी काम आप सोचोगे अगर आपने फैक्ट्री लगाई हो तो आपको ये सारे काम खुद करने पड़ेंगे, पर वो सारे काम किसने ले लिए? कंपनी ने। और हमें टेंशन फ्री काम दे दिया एक ही कि जी आप सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करो और दूसरों से शेयर करो और बिजनेस को फील करो और दूसरों से शेयर करो, बस हमारा काम इतना ही है। और इससे क्या है, 60 से 70% के हिस्सेदार हम बन जाते हैं। सोचो कि हमारा टेंशन फ्री काम है, उनका टेंशन फुल काम है। तो इससे बहुत से क्वेश्चन शाम को पूछे जाएंगे आपसे और आप इसको दोबारा से एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इट्स ए पार्ट ऑफ द प्लान। आगे चलिए। द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। Process of achievement. For success in any business, proper planning, implementation, and action is required. हाँ जितेंद्र जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन को पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये सारी दिमाग में बिठाने वाली चीजें हैं। एक लाइन से ही आगे बढ़ेंगे। फॉर सक्सेस, जो लोग सक्सेस चाहते हैं, कितने लोग सक्सेस चाहते हैं? देखो यहाँ पे वो अब सारी चीजें आपको बताएगा। बिलब्रिट जी महागुरु हर चीज आपको बताएंगे कि फॉर सक्सेस, जिसने सक्सेस लेनी है इन एनी बिजनेस, प्रॉपर प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड एक्शन इज रिक्वायर्ड। राइट। आगे आपको हम सारा प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट पूरा एक एक करके बहुत गहराई से समझाएंगे, क्योंकि यही चैप्टर है जिसपे हम सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो इसलिए इस पे हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो आप इसको बड़े अच्छे से समझते चले जाइए।
हाँ जी जितेंद्र जी आगे पढ़िए। As author essay puts it, one important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. प्रेपरेशन वो पहले हमने डिस्कस कर दिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो लोग ज्वाइन करेंगे या आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, और उसका की क्या है, सेकंड की क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रेपरेशन से। प्रेपरेशन कहां से होगी, जब आप ये सारी जो मैंने बस्ता आपको दिया, जो 10 किताबें हैं आप वही पढ़ लीजिए, आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप जो सीढ़ियां हमने बताई उनको सुन लीजिए, आप स्मार्ट टच ऐप लगा लीजिए, उस पे सारी अपना उस पे अपना टेक्नोलॉजी पैक लगा लें, तो उसमें 1 रुपए की सीडी आपको मिल जाएगी सुनने को, 1 रुपए की, सोचो। ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट उसकी 1 रुपए आती है। तो आप वो सुने, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर ऐसे जो ये जूम मीटिंग्स आप सुन रहे हैं, सुबह मॉर्निंग क्लास, शाम को आप पेस मीटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। प्राइज जीतना उसमें बड़ी बात नहीं है, पर जो उस प्रोसेस से आप डायमंड जाएंगे वो बड़ी बात है, राइट। प्राइज इज इममटेरियल, और मेन प्राइज आपको क्या मिलने वाला है, आपकी झोली में डायमंड शिप पड़ने वाली है। अगर आप कीन इंटरेस्ट लेके सारे काम करेंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और डायमंड शिप के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए प्रेपरेशन इज द की। और प्रेपरेशन कहां से, प्रेपरेशन हमें बुक से, सीडी से, हमारे सिस्टम से, हमारे बस्ते से, जो हमने बस्ता कल आपको दिया। कितने लोगों ने बस्ते का तकरीबन 80-90% जो चीजें थी वो इकट्ठी कर ली। जो बस्ता हमने आपको परसों भेजा है, कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम 80-90% चीजें अपनी परसेंटेज लिखे। कईयों ने तो हो सकता है 100% बस्ता तैयार कर लिया हो। आप यस की बजाय आप परसेंटेज लिखिए जी, कितनी परसेंटेज, लगभग अंदाजा। जितेंद्र शर्मा जी का 100%, शिल्पा का लगभग 80% बस्ता तैयार है। लिखिए सभी लोग। राजवीर का 90%, डॉक्टर मंजू जी का 100% बस्ता तैयार है, दीप शिखा जी का 100% बस्ता तैयार है, और ये क्या है, 9 क्या है, नकुल शर्मा जी का 100% बस्ता तैयार है, तरुण थापर का 90% बस्ता तैयार है। हाँ जी, सिद्धार्थ जैन का 100% सारा तैयार है, अनु शर्मा जी का 90% है। हाँ जी, मुवीन का 90%, डॉक्टर ज्योति का 100%, मनोज आईफोन 100%। और बताइए कितने परसेंट बस्ता तैयार है, चरनीत कौर का 100% बस्ता तैयार है। देखो कितने डायमंड इन द मेकिंग। ये सारे फ्यूचर डायमंड है जो 100% लिख रहे हैं। जिनका 100% बस्ता तैयार है वो फ्यूचर डायमंड है। 100% मेरे से लिखा लो आप। प्रभजोत का 100%, हरप्रीत कौर का 80%, जो 80 है उनकी अपलाइन उनको हेल्प करके 100% करा दें उनका। अंजू सेठ का 100% बस्ता तैयार है। सो यू आर रेडी टू गो डायमंड। क्योंकि जो बच्चा जिस बच्चे का स्कूल बैग तैयार है वही कल को डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। दूसरे का तो कोई चांस ही नहीं है। जिसके पास बस्ता ही नहीं है वो क्या खाक डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो डॉक्टर इंजीनियर वही बनते हैं जिनका सबसे पहले, सबसे जरूरी है स्कूल बैग में सारी चीजें हो। आप सोचो कि एक क्लास, एक सब्जेक्ट की एक बुक नहीं है आपके पास, और टीचर क्या करता है जी, बंद हो रहा है, कहते दोबारा से एक बार फिर हमने लॉग इन करना है, सबने फास्ट लॉग इन करना है, अभी बंद हो जाएगा 1-2 मिनट में, तो आपने दोबारा से फटाफट लॉग इन करना है सारा, सभी ने। तो मैं ये कह रहा था कि जिस स्टूडेंट का मान लो एक सब्जेक्ट की बुक नहीं है और टीचर आता है, वो कहता है जिसके पास बुक नहीं है बाहर खड़े हो जाओ या हाथ खड़े करो जी ऊपर, सजा देता है कि नहीं देता। तो अगले दिन वो क्यों सजा देता है, इसलिए सजा देता है कि अगले दिन आप वो वाली बुक लेके आओ। अगर फिर भी नहीं लेके आते, अगले दिन फिर आपके पेरेंट्स को नोट बना के भेजते हैं कि जी बावजूद कहने के इन्होंने वो अपना बुक नहीं लेके आए। और अगर फिर भी ना लेके आए तो फिर कॉल करते हैं पेरेंट्स को, स्कूल में हेड टीचर जो हेडमास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो कॉल करते हैं कि जी आप बताओ आपके बच्चे के पास तो बुक ही नहीं है, हम क्या खाक पढ़ाएंगे इसको। कल को आप हमें दोष दोगे कि जी स्कूल में इतनी फीसें दे रहे थे, इतने ज्यादा हम पैसा बर्बाद कर रहे थे, बच्चा हमारा पास नहीं हुआ। बच्चा का पास कैसे होगा, क्योंकि बच्चे के पास तो बस्ता ही नहीं है कंप्लीट।
बच्चे के पास तो बुक्स ही नहीं है कंप्लीट, तो उस बच्चे का तो कोई चांस ही नहीं है ना। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बस्ता हमने बहुत ही सोच समझ के और बेयर मिनिमम बस्ता आपको भेजा है, नहीं तो मैं तो 500 बुक्स लिख सकता था उसमें, ठीक है। तो 10 ही बुक्स लिखी है, और वो भी कोशिश की है कि पतली से पतली लिखी जाए ताकि आपको नींद ना आए पढ़ने में। पर जो मोटी है थोड़ी बहुत, वो कुछ है 2-3, तो वो भी पढ़नी पड़ेंगी। इतना तो कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी ना, तभी तो बीमारी ठीक होगी। ये गरीबी की, ये कह लो कि अपना हर चीज में कंजूसी की, हर चीज में सोचने की, मैं करूं ना करूं, तो ये सारी बीमारियां ठीक होंगी जब हमारे पास, जो हम अगर कड़वी दवाई थोड़ी सी पियेंगे। तो हाँ जी, सो क्लियर है जी। हाँ, तो आपको पता चल गया, इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसको आप अंडरलाइन कर लें सब लोग। वन इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन कहां से होगी? आपके बस्ते से, आपके स्कूल बैग से, आपके डायमंड बैग से, जो हमने आपको डायमंड बैग भेजा है। आगे चलिए जितेंद्र जी। One must have firm belief in oneself and be passionate about this business, because if you are not excited about doing a certain things, you will never be able to deliver outstanding results. हाँ, सो जिस चीज को आप बिलीव ही नहीं कर रहे, तो उसमें आप अच्छे रिजल्ट नहीं कर सकते। सो जब तक, कहते हैं राजशाह जी हमारे जो महागुरु हैं, डॉक्टर बड़ैच के भी गुरु हैं, टीचर हैं, वो कहते हैं ये बिजनेस जस्ट 1.5 फुट नीचे आने का है। तो शुरू शुरू में हम समझते ही नहीं थे, वो सीडी में बोल देते थे, टेप में बोल देते थे कि सिर्फ 1.5 फुट नीचे आने का ये बिजनेस है। हम कहते पता नहीं 1.5 फुट क्या नीचे आना है, कहा 1.5 फुट नीचे आना है। बहुत से लोग आप भी सोचते होंगे कि 1.5 फुट क्या मतलब। 1.5 फुट का मतलब यहां से बिजनेस जब यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगा, मतलब इट ट्रेवल्स फ्रॉम योर हार्ट हेड टू हार्ट, जब ये दिमाग से दिल में उतर आएगा तो आप डायमंड चले जाएंगे। बस सिर्फ 1.5 फुट नीचे लेके आना है। और 1.5 फुट नीचे कब लेके आओगे? जब आप पैशनेट होंगे, जब आप इसको लाइक करेंगे, जब इसको आप पूजा करेंगे, जब इसको आप अपना बच्चा समझेंगे, अपने बच्चे की माफक उसको प्यार करेंगे, इसकी बुक्स को, सीडीज को, फंक्शंस को, प्रोडक्ट्स को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, इन सब से गहरी दोस्ती, गहरा प्यार, मोहब्बत करोगे, तो आप डायमंड चले जाओगे। हाँ जी। If you are forced to perform a task that you do not like, you will seldom achieve positive results. वेरी वेरी You may क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए you बोलिए। may perhaps have to struggle to finish it within the stipulated time, and the हाँ जी, chances are that you will also make a lot of mistakes. हाँ। सो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, उसमें तो आप गलतियां भी बहुत करोगे, और उसमें चांस ये है कि आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। पर अगर आप एमवे को अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे, तो आप इसमें 100% डायमंड जाएंगे ही जाएंगे, मेरे को लिख के। पर बच्चे को कैसे प्यार करते हैं आप देखिए, अनकंडीशनल लव। बच्चा गलतियां करता है, बच्चा आपसे पैसे मांगता है, डिमांड करता है, कुछ खिलौने मांगता है, कुछ और मांगता है, आप सब कुछ कोशिश करते हो कि अपने बच्चे को देने की, राइट। तो वो भी आगे आएगा सारा, कि अगर आप इसको एक अनदर बच्चा, जैसे आप समझो आपके 2 बच्चे हैं, तो इसको आप अपना तीसरा बच्चा समझेंगे, और दोनों बच्चों के जितना प्यार करेंगे और जितना उन पे खर्चा कर रहे हो इस पे करोगे, तो ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आपके दोनों बच्चों से ज्यादा आपका टेक केयर करेगा। इसको बोलते हैं हम एमवे बच्चा। हमें डॉक्टर बड़ैच हमेशा एक ही बात कहते थे, विमल इसको एमवे बच्चा बना के रखो, अपना एमवे बच्चा। ये आपके जो जो आपके दूसरे बच्चे हैं, उनसे ज्यादा आपकी टेक केयर करेगा। और पहले हमें उनकी बातों को ध्यान में नहीं आते थे कि वो क्या कह रहे हैं, पर आज हमें पता है कि एमवे बच्चा तो हमें दे रहा है हर महीने लाखों रुपया, और दूसरे बच्चे तो उतना पैसा नहीं देते ना हमें। उन पे तो हमने ज्यादा मेहनत की हुई है। आप सोचो कि उनको तो 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल पढ़ाया, उनकी फीसें दी, उनका खर्चा किया, उनको स्कूलों में, कॉलेजों में, फिर उनको
अपना हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया और कितना ग्रो कराया, वो तो उतना आपको रिवार्ड नहीं ना दे रहे, उतना रिजल्ट नहीं ना दे रहे जितना इस एमवे बच्चे को हमने एक और बच्चा समझ के उसको प्यार दिया, उस पे भी मेहनत की, उसको भी पुचकारा, उसके भी ऊपर पैसा खर्च किया, पर उस पे बहुत थोड़ा पैसा खर्च किया बाकी बच्चों से हमने। फिर भी ये एमवे बच्चा हमें वो बायोलॉजिकल बच्चों से कहीं ज्यादा गुना प्यार करता है और हमें रिवार्ड्स देता है, राइट। और हमारी शान बढ़ाता है ये एमवे बच्चा, पूरी दुनिया में हमारी शान बढ़ाई है इस एमवे बच्चे ने। तो आप अपने बच्चों से भी ज्यादा बढ़ के इस बच्चे को प्यार करेंगे तो आप बहुत ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। हाँ जी, The process of achievement. हाँ अब समझिए द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट क्या मतलब। सभी लोग लिखिए जरा अपने अपने अपना उसमें लिखिए नीचे चैट में, क्या मतलब इसका प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट करने का रास्ता, क्या रास्ता है जी? मुझे डायमंड जाना है, रास्ता बताओ प्रभु। मुझे डायमंड जाना है, पक्का जाना है डायमंड, पर मुझे रास्ता बताओ। मुझे नहीं पता, मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे नहीं पता डायमंड कैसे जाना है, मुझे रास्ता सुझाओ। तो बिलबड़ी जी कहते हैं आपको हम रास्ता बताते हैं, द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, सफलता का सफर, हरप्रीत जी ने लिखा है, राइट। सो अभी जितेंद्र जी आपको बताएंगे कि किसी भी काम में अगर अचीवमेंट लेनी है तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। शायद किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया होगा आपको, अभी हम आपको बताएंगे। तो राधा जी कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। राधा जी अभी बताएंगे, ये बिलब्रिट जी बताएंगे। मैंने तो ये पूछा कि प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि रास्ता, वो अभी बिलब्रिट जी बताएंगे। बताओ जी सर, बिलब्रिट जी क्या कहते हैं, कैसे रास्ता बताना। Success doesn't happen by chance. हाँ जी, सक्सेस ऐसा नहीं है कि कोई लेडी है और बोले आपको लो मैं आ गई, है आपके कंधे पे आ जाए और चढ़ के बोले है जी लो मैं आ गई, ऐसा नहीं है। वो है ना एक मूवी का गाना, जिसको वो गाना अगर याद आ जाए तो वो प्लीज सुना भी दे जरा उसको। अपना सिद्धार्थ जी अनम्यूट कर देंगे। तो वो नहीं है, सक्सेस अपने आप नहीं आती, सक्सेस को घर में लाना पड़ता है। बड़ा एटीट्यूड है सक्सेस में, बहुत तकड़ा एटीट्यूड रखा हुआ है सक्सेस ने। हाँ जी, एटीट्यूड, जिसका एटीट्यूड होता है ना वो कभी आता है घर आपके बिना बुलाए? नहीं आता ना, ऐसी सक्सेस भी बिना बुलाए नहीं आती। तो बहुत बहुत जबरदस्त एटीट्यूड रख के बैठी हुई है ये सक्सेस। तो सक्सेस डज नॉट हैपन बाई चांस। जो लोग सोचते हैं ना जी कि जी बस कुछ नहीं जी, हम तो बस अपना अपने आप ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला अपने आप। सो इसको आप जरा हाईलाइट कर लें, हाईलाइट कर लें, सक्सेस डजंट हैपन बाई चांस।